Greetings of the day. Welcome to class. Please bring and keep the precis question to see and read when this class starts. Please bring and keep the precis question to see and read when this class starts. Okay? Let's start the class. This class is about precis writing in an easy way, plus skimming, scanning, understanding, identifying the tone like sympathetic tone, ironical tone, accusatory tone. Okay? Ready? Smile please, be cool, calm, but attention please. Listen carefully with attention. Listen carefully with attention till the end so that you can better understand. तो मैं अभी बताऊंगा प्रेसी क्या है. प्रेसी का मतलब इसको ये टेक्स्ट को छोटा बनाना है, 1/3 बनाना है, मतलब 3 भाग से 1 भाग बनाना है. 300 वर्ड्स को 100 वर्ड्स में बनाना है. प्रेसी का मतलब शॉर्टन करना है, ब्रीफन करना है. और कैसे करेंगे? 3 बार तो टेक्स्ट यानी पैसेज को पढ़ना चाहिए 1 by 1. ओके. वो प्रेसी राइटिंग में आप देखो, ये प्रेसी में लिखा है यू, और प्रेसी राइटिंग के रूल में आई, वी, यू नहीं लगेगा आंसर पे. ओके, ठीक है. ठीक है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ स्किमिंग क्या है. स्किमिंग का मतलब जल्दी जल्दी पढ़ना, ओवरऑल आइडिया पाना. तो जल्दी जल्दी पढ़ना का मतलब है ओवरऑल आइडिया पाना है, किसके बारे में लिखा है. और ये स्किमिंग का मतलब सब्जेक्ट मैटर जानने के लिए हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे. स्किमिंग मीन्स to get the main idea, main subject matter or a very brief gist of the text. और अभी मैं बताऊंगा स्कैनिंग क्या है. स्कैनिंग इज detailed study of text or passage to find out specific and correct information or idea और कंप्लीट नॉलेज अबाउट द टेक्स्ट. तो स्कैनिंग का मतलब लेखा की पूरा जानकारी ढूंढना है, निर्दिष्ट इंफॉर्मेशन ढूंढना है. अभी बात करते हैं टोन के बारे में, थोड़ा जानकारी. टोन क्या है इसके बारे में मैं अभी बता रहा हूं. ओके. तो टोन क्या है उसके बारे में बता रहा हूं. बहुत सारे ये टोन है, मतलब किस स्वर से क्या है अंदर, टेक्स्ट राइटर ऑथर. ठीक है, मैं 2-300 बताता हूं. हमारा ये जो सिलेबस है उसमें लिखा है टोन, आयरनिकल, सिंपैथेटिक, एक्यूजेटरी. थोड़ा सा बताता हूँ. आयरनिकल टोन मतलब विडंबनात्मक टोन. विडंबनात्मक टोन, आयरनिकल टोन मतलब जो बोलते हैं, जो लिखते हैं उसका कुछ अपोजिट होता है. समथिंग अपोजिट इज देयर. विडंबना है, माने ये नहीं हुआ है, वो होना चाहिए. ठीक है. और दूसरा टोन है सिंपैथेटिक टोन, मतलब सहानुभूतिशील टोन. राइटर लेखा में और टेक्स्ट में किसके और किसको सहानुभूति प्रदर्शन कर रहे हैं क्या, अगर कर रहे हैं तो सिंपैथेटिक टोन है. और नेक्स्ट है एक्यूजेटरी टोन, मतलब अभियोग और इल्जाम लगाना. मतलब अभियोग है क्या, इल्जाम है क्या, ये हुआ है,
ये होना चाहिए, ये है क्या? ठीक है, ओके। तो अभी हम करेंगे स्कीमिंग, ये प्रेसी राइटिंग को। देखो टेक्स्ट पढ़ो, ये शुरू हुआ है, यू आर लिविंग in an age when there are great opportunities for women in social work, public life and administration. Society requires women of disciplined minds and restrained manners. Whatever line of work you undertake, you should bring to it an honest, disciplined mind. You will then succeed and have the joy of your work. Actually, in our country, education, so far as girls' education is concerned, is not widespread. So every institution which contributes to the education of the girls is worthy of recognition and encouragement. But I am anxious that the kind of education that is imparted must not only be broad, but should also be deep. You are lacking in depth. We may become learned or skilled, but if we do not have some kind of purpose in our lives themselves become blind, blundering, and bitter. What that purpose is, you have to define to yourself. It is said that Vidya gives you Vivek, a sense of what is right, and helps you to avoid what is wrong. You must try to find out what is required of you in this generation. A purpose which held centuries ago may not hold good today in view of the rapidly changing conditions of our country and of the world. So the purpose which you adopt in your life must be adapted to the relevant needs of the present generation. तो उसमें जो स्कीमिंग किए हैं उसका जनरल आइडिया, सब्जेक्ट मैटर क्या है पता चल गया है। क्या है भाई? गर्ल्स एजुकेशन। गर्ल्स एजुकेशन बारे में लिखा है, वो तो पता चल गया है, ठीक है। अभी हम टेक्स्ट को स्कैनिंग करते हैं। स्कैनिंग करते कैसे करेंगे? और स्कैनिंग का मतलब आप जानते हैं, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ढूंढना, ठीक है। ढूंढते हैं स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। देखो यहाँ लिखा है अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन सोशल वर्क, मतलब काम करने वाली महिला पब्लिक लाइफ में, एडमिनिस्ट्रेशन में है, ठीक है। लेकिन इसको बिल्कुल लाइन बाय लाइन आप पढ़ो, अभी मैं नहीं पढ़ना हूँ, और ढूंढना चाहिए। और सक्सीड नहीं होंगे अगर डिसिप्लिन और रेस्ट्रेन नहीं हो तो। माइंड्स एंड डिसिप्लिन माइंड्स एंड रेस्ट्रेन मैनर्स आर रिक्वायर्ड फॉर सोसाइटी, फॉर द वुमेन। एंड इन द सेकेंड पैराग्राफ यू सी, एक्चुअली इन आवर कंट्री गर्ल्स एजुकेशन वाइड स्प्रेड नहीं है, वो स्कैन करना है। और राइटर यहाँ लिखता है एजुकेशन रिकॉग्निशन एंड एनकरेजमेंट टू स्पेसिफिक वर्ड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ लिखा है नीचे देखो, एजुकेशन इट शुड बी मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड एंड डीप। गर्ल्स एजुकेशन ब्रॉड और डीप नहीं होना चाहिए, सॉरी, सिर्फ ब्रॉड नहीं होना चाहिए, ये डीप भी होना चाहिए। उसके नीचे लिखा है वी मे बिकम लर्नड एंड स्किल्ड, बट इफ यू डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पस इन आवर लाइफ, our lives themselves become blind. That means अगर गर्ल्स एजुकेशन को ब्रॉड किया जाएगा, डीप किया जाएगा, तो गर्ल्स स्किल्ड हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद स्कैनिंग करते हैं पर्पस ऑफ लाइफ, विद्या और विवेक, ए सेंस ऑफ व्हाट इज राइट। सो इन द प्रेजेंट जनरेशन ये है रिलेवेंट नीड्स। एजुकेशन सिस्टम इंडिया का करिकुलम में क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही है, ये सिलेबस में नहीं है, करिकुलम में नहीं है, ठीक है। आप आराम से धीरज रखिए और पढ़िए। अभी ये टेक्स्ट तो स्कैनिंग हो गया है। क्वेश्चन जो है आप देखो, वो जो टोन के बारे में तो बता चुका हूँ मैंने, और फिर एक बार बता दूंगा। और क्योंकि ये इस पैसेज में हम टोन डिस्कस करेंगे, तो सिंपैथेटिक टोन है क्या?
सिंपैथेटिक टोन का मतलब सहानुभूतिशील टोन। आयरोनिकल टोन का मतलब क्या है? आयरोनिकल टोन का मतलब विडंबनात्मक टोन, विडंबना है जहाँ। एक्यूजेटरी टोन का मतलब अभियोग 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 या इल्जाम। सो पैसेज जब हम आगे जाएंगे तो टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो रफ ड्राफ्ट आप कैसे करेंगे? देखो, मैंने जो मेन आइडियाज बताया स्कैनिंग में, वो भी रफ आइडियाज में। जब आप रफ लिखते हो ना, एग्जाम खाता में रफ लिखो। अच्छा, अभी तक तो आपको पता चल गया है किसके बारे में लिखा है, ठीक है। रफ ड्राफ्ट बनाते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन वर्क फील्ड। ऑनेस्ट डिसिप्लिन माइंड होने से नारी शिक्षा सफल होगा। यू विल देन सक्सीड। आनंद मिलेगा काम करने से नारियों को, महिलाओं को। जॉब वर्क, सी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ। अच्छा, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है, मैं ये बताया है। आप जानते हैं व्यू पॉइंट्स क्या है? जंप पॉइंट्स। जब भी रफ करेंगे, रफ बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेसी बनाने के लिए। प्रेसी बनाने के लिए रफ जरूरी है। और रफ कैसे बनाएंगे? दूसरा व्यू पॉइंट्स, दूसरा जंप पॉइंट्स। सो व्हाट आर इम्पोर्टेंट व्यू पॉइंट्स और व्हाट आर इम्पोर्टेंट जंप पॉइंट्स, अभी रफ बताते हैं। रफ ड्राफ्ट देखो, फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन वर्क फील्ड। ऑनेस्ट डिसिप्लिन माइंड होना चाहिए, नारी शिक्षा सफल होगा। यू विल देन सक्सीड, तब आनंद मिलेगा काम करने से। जॉब वर्क, सी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ। अच्छा, इसके बाद इस टेक्स्ट में जो स्पीकर है, जो लेखक हैं, वो पॉइंट जंप करते हैं। सेकेंड पैराग्राफ देखो, एक्चुअली इन आवर कंट्री। इस लाइन से सेकेंड जंप पॉइंट यानी सेकेंड व्यू पॉइंट आता है। एक्चुअली इन आवर कंट्री से शुरू होता है सेकेंड जंप पॉइंट। गर्ल्स एजुकेशन वाइड स्पिरिट नहीं है। गर्ल्स एजुकेशन वाइड स्पिरिट नहीं है, उसको रिकग्निशन और इनकरेजमेंट मिलना चाहिए, ये लिखा है सेकंड जंप पॉइंट। देखो, पहले पॉइंट से कैसे चेंज हो गया। अभी थर्ड जंप पॉइंट आएगा। देखो कहाँ से शुरू होता है ये प्रेसी में, पैसेज देखो, बट आई एम एंग्शियस दैट, वहाँ से थर्ड जंप पॉइंट और थर्ड बी पॉइंट शुरू होता है। देखो पा गया ना, ठीक है। बट आई एम एंग्शियस दैट से शुरू होता है थर्ड जंप पॉइंट और व्यू पॉइंट। यहाँ देखो लिखा है बट आई एम एंग्शियस, लिखा है, ये से शुरू होता है। सो इसमें क्या लिखा है, काइंड ऑफ गर्ल्स एजुकेशन शुड नॉट ओनली बी ब्रॉड बट ऑल्सो बी डीप। दैट मीन्स इस व्यू पॉइंट में मेन आइडिया क्या है, यहाँ से निकालेंगे क्योंकि ईच व्यू पॉइंट और मेन पॉइंट को, यानी 4-5 पॉइंट्स होगा, तो सारे पॉइंट्स को हम प्रेसी के फाइनल आंसर में लिखेंगे। तो इस जो थर्ड व्यू पॉइंट और जंप पॉइंट है, उसमें क्या है, इन द क्वालिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इन गर्ल्स एजुकेशन, the education should be broad and deep too. So girls education should be broad and deep too. That is the third jump point. अभी आते हैं कहाँ से चेंज होता है ये आइडिया, फिर दूसरा कहाँ से जंप करते हैं राइटर इस टेक्स्ट में। फोर्थ जंप पॉइंट यानी व्यू पॉइंट कहाँ से शुरू होता है, मैं पढ़ता हूँ। देखो, वी मे बिकम लर्नड एंड स्किल्ड बट if we do not have some kind of purpose in our life। देखो ये लाइन ढूंढो क्वेश्चन में, we may become learned and skilled but if we do not have some kind of purpose in our life, यहाँ से शुरू होता है फोर्थ जंप पॉइंट।
मतलब यहाँ स्किल्ड ओलान मतलब पर्पस ऑफ लाइफ, माने एजुकेशनल पर्पस और एजुकेशन एंड पर्पस, शिक्षा के साथ उद्देश्य, ये है 4 पॉइंट। और लास्ट पॉइंट भी है एजुकेशन एंड पर्पस, इट मीन्स पर्पस ऑफ लाइफ प्लस एजुकेशन। ठीक है, यहाँ लिखा है देखो पैसेज में, विद्या विवेक एसेंस ऑफ व्हाट इज राइट। तो इस पॉइंट में क्या कहना चाहते हैं लेखक और क्या है, क्या ये स्पीकर क्या बोलना चाहते हैं। ये जनरेशन आज की युवा पीढ़ी जो विद्या और विवेक व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग सीखना चाहिए वो नहीं सीख रहे हैं। ये अभी तक हमारी एजुकेशन सिस्टम और करिकुलम एंड सिलेबस में नहीं है। क्या नहीं है? पर्पस ऑफ लाइफ, विद्या और विवेक। ठीक है, यहाँ टोन के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ कौन सा टोन आ रहा है ये 4th पॉइंट में, ये एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन इमा पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है। यहाँ कौन सा टोन आ रहा है? यहाँ आ रहा है एक्यूजेटरी टोन, मतलब अभियोग और इल्जाम लगाते हैं लेखक कि विद्या और विवेक देना एक साथ क्लास में पढ़ाई नहीं जा सकता, तो अच्छा नहीं है। मतलब एजुकेशन सिस्टम में अभी तक विवेक और व्हाट इज राइट और सिस्टम अभी तक लागू नहीं किया हुआ, इसीलिए ये अभियोग और इल्जाम लगा रहे हैं। मतलब हमको स्पिरिचुअल शिक्षा देना चाहिए, वो कहना चाहते हैं। इस पैसेज में कहाँ पे आयरोनिकल टोन है? आयरोनिकल मतलब विडंबना टोन है। हाँ है, कैसे है? यू आर लिविंग इन एन एज एंड यू रीड देयर इज नो ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन माइंड। ये आयरोनिकल मतलब वो जो वर्कर हैं, वुमेन, एजुकेशन गर्ल्स डिसिप्लिन नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, रेस्ट्रेंट मतलब कंट्रोल नहीं है, ये विडंबना है। यू विल सक्सीड एंड फाइंड जॉय इफ यू हैव एन ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन माइंड। अगर आपके पास, ये गर्ल्स के पास, वुमेन के पास, नारी के पास ऑनेस्टी आएगा, डिसिप्लिन आएगा, यानी रेस्ट्रेंट या कंट्रोल आएगा तो अच्छा होगा, लेकिन ये नहीं हो रहा है, ये विडंबना है, इसीलिए आयरोनिकल टोन है। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं। सिंपैथेटिक टोन है कि नहीं? सिंपैथेटिक टोन यानी सहानुभूतिशील टोन। हाँ है भाई, कैसे है? द स्पीकर इन दिस टेक्स्ट सेज गर्ल्स एजुकेशन इज नॉट वाइड स्प्रेड। गर्ल्स एजुकेशन नीड्स रिकॉग्निशन एंड एनकरेजमेंट। वो गर्ल्स एजुकेशन वाइड स्प्रेड नहीं है, उत्साहित नहीं हो रहा है। मतलब नारी के प्रति, उनके गर्ल्स के प्रति, उनका एजुकेशन के प्रति स्पीकर और राइटर ऑफ दिस पैसेज और टेक्स्ट संवेदनशील है, सहानुभूतिशील है, इसीलिए यहाँ सहानुभूतिशील टोन यानी सिंपैथेटिक टोन है। ठीक है, हाँ। अभी हम चलते हैं फाइनल प्रेसी। फाइनल प्रेसी राइटिंग होगा, लेकिन प्रेसी राइटिंग में एक टाइटल की ज़रूरत होता है, तो अभी हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कौन सा टाइटल अच्छा लगता है। ठीक है, ये तो गर्ल्स के बारे में लिखा है भाई, गर्ल्स एजुकेशन, ये टाइटल अच्छा लगता है। ठीक है, मैं 4-5 टाइटल बताता हूँ। एक गर्ल्स एजुकेशन, सेकंड एजुकेशन फॉर वीमेन, थर्ड क्वालिटी एजुकेशन फॉर वीमेन, फोर्थ राइट एजुकेशन फॉर वीमेन, फोर्थ राइट पर्पसफुल
एजुकेशन फॉर वुमेन। ये जो 1 2 3 4 5 टाइटल हमने चुने हैं, कौन सा टाइटल अच्छा होगा? और टाइटल देखो, गर्ल्स एजुकेशन टाइटल चलेगा, लेकिन टोटल आइडिया पैसेज को जो कवर नहीं कर रहा है गर्ल्स एजुकेशन। और एजुकेशन फॉर वुमेन, हाँ चलेगा, ठीक है। और दूसरा है क्वालिटी एजुकेशन फॉर वुमेन, ये टाइटल भी सही रहेगा, चलेगा। लेकिन इस पैसेज में जो लिखा है उद्देश्य, पर्पस, विवेक, व्हाट इज राइट एंड से, व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, इसीलिए जो 4 पॉइंट्स हैं ड्राफ्ट में जब हम किए, तो दो टाइटल मुझे तो अच्छा लगता है, जो बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा प्रेसी की टाइटल जब लिखेंगे। तो मैं चुनता हूँ ये टाइटल, राइट पर्पसफुल एजुकेशन फॉर वुमेन। So this title is most appropriate, right purposeful education for women। दूसरा टाइटल भी चलेगा भाई, राइट एजुकेशन फॉर वुमेन। क्वालिटी एजुकेशन फॉर वुमेन, ये चलेगा लेकिन फेल नहीं है। एजुकेशन फॉर वुमेन, ये भी राइट है। गर्ल्स एजुकेशन, ओके, दौड़ेगा, चलेगा, लेकिन व्हाट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। लेकिन अब जब टाइटल देंगे, यहाँ से दूसरा तो टाइटल नहीं देंगे ना, सिर्फ आप नहीं लिख सकते एजुकेशन, ऐसा नहीं लिख सकते। इसका टाइटल, अच्छा गलत टाइटल क्या है, यहाँ आप लिखेंगे सेकुलरिज्म एंड गर्ल्स एजुकेशन, ये नहीं है। पर्पस ऑफ एजुकेशन, ये चलेगा लेकिन अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। सो व्हाट इज द राइट टाइटल? राइट पर्पसफुल एजुकेशन फॉर वुमेन, बिकॉज दिस टाइटल कवर्स ऑलमोस्ट all the points throughout the whole passage. Now I will come to the final passage, जो को 1/3 किया है, 3 भाग से 1 भाग, क्योंकि प्रेसी का मतलब है 300 वर्ड को 100 वर्ड्स बनाना है, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ, देखो। फाइनल प्रेसी। In the present age, for the success and joy in work field, women are required to be disciplined, restrained and honest. Full stop. With the recognition and encouragement of girls' education, the education should be both broad and deep. That will make them learned and skilled. But if the purpose of education or the sense of what is right or wrong is not adapted to the relevant needs of the present generation, then it will be a great blunder. Finished. This is the end of the Pressy writing, and the answer of this Pressy will be sent in text format, in PDF format to the WhatsApp group, those of you who have joined. Thanks. Listen to this video, mainly listen to the audio actually, with the passage or the text with you at your front, then you can better understand. Thanks, my dear visitors, students, colleagues, or those who are present in the live class. Thank you very much. Keep watching, keep listening. So आज जो मैं प्रेसी के बारे में बताया हूँ, स्कीमिंग के बारे में, स्कैनिंग के बारे में, हाउ टू अंडरस्टैंड के बारे में, जो प्लस 3 3rd सेमेस्टर की
SCCA इंग्लिश कम्युनिकेशन क्लास में है, वो ज़रूर देखिए, और जो व्हाट्सएप ग्रुप में छोड़े हैं वो देखिए और जानिए। आप जानेंगे और सीखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा बताने के लिए, समझाने के लिए। थैंक यू, बी हैप्पी, हैव ए नाइस डे।